بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. خبر دنیا بھر سے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں محمد حسام الدین متین. سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز. پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ. آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں. سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive. حماس نے تجاویز قبول کی ہیں. تاریخی دن اسرائیل غزہ پر بمباری روک دے. امریکی صدر ٹرمپ کا زور. امریکی صدر ٹرمپ کی تاکید کے باوجود بھی غزہ پر یہودی فوج کے وحشیانہ حملے، درجنوں ہلاکتیں. غزہ کے مظلوم شہریوں کی حمایت میں اٹلی کے کئی شہروں میں زبردست احتجاجی مظاہرے. انسانی سروں کا سمندر، ملک کا نظام مفلوج. منافع میں کمی کے بعد ہزاروں ملازمتوں میں کٹوتی کا اعلان. ایئر لائنز لفتانسا کا بڑا فیصلہ. جرمنی کے میونخ ایئرپورٹ پر ڈرون کا دوسرا خطرہ. پروازیں بحال مگر تاخیر متوقع. اور منشیات اسمگلنگ کی مشتبہ کشتی پر حملہ، 4 افراد ہلاک. امریکہ کی کیریبین میں کارروائی. حماس دائمی امن کے لیے تیار ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کی جانب سے جاری بیان کی بنیاد پر بیان جاری کر دیا. مختصر ویڈیو پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان ممالک کا شکریہ جنہوں نے اس کام کو ممکن بنانے میں مدد کی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ پر بمباری فوری طور پر روکی جائے تاکہ یرغمالیوں کی محفوظ اور جلد رہائی ممکن بنائی جا سکے. انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں یرغمالیوں کی رہائی بہت زیادہ خطرناک ہوگی. صدر ٹرمپ نے کہا کہ تفصیلات طے کی جا رہی ہیں. یہ صرف غزہ کی حد تک نہیں ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ مشرق وسطیٰ میں طویل عرصے سے جاری امن کی کوششوں سے متعلق ہے. حماس نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا ہے. حماس نے یرغمال اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی. حماس کا کہنا ہے کہ وہ ہتھیار مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کرے گی، جبکہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار بھی مسترد کر دیا ہے. حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس نے اپنی قیادت فلسطینی دھڑوں، فورسز ثالثوں اور دوستوں سے مشاورت کی ہے تاکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر ذمہ دارانہ موقف اختیار کیا جائے. غور و خوض کے بعد فیصلہ ثالثوں کے حوالے کر دیا ہے. حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی انڈیپینڈنس یعنی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہونی چاہیے، جس کے لیے قومی اتفاق رائے ہو اور اسے عرب اور مسلم ممالک کی حمایت حاصل ہو. حماس غزہ جنگ ختم کرنے، قیدیوں کی رہائی اور فوری امداد کی فراہمی سے متعلق غزہ پر قبضہ مسترد کرنے اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے خلاف عرب اسلامی ممالک عالمی کوششوں اور صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتی ہے. حماس کا کہنا ہے کہ مکمل جنگ بندی، غزہ سے مکمل فوجی انخلا کے لیے حماس اعلان کرتی ہے تاکہ وہ تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر آمادہ ہے، جن میں زندہ اور مردہ دونوں یرغمالی شامل ہیں. اس کے لیے ضروری زمینی ماحول فراہم کیا جانا چاہیے اور حماس ثالثوں کے ذریعے اس پر بات چیت کے لیے آمادہ ہے. حماس کے رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے عرب ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی میں صدر ٹرمپ کی جانب سے دی گئی 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں یہ ڈیڈ لائن غیر حقیقت پسندانہ ہے. امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے کو حماس کی طرف سے قبول کیے جانے کے بعد غزہ میں بچوں اور نوجوانوں کی طرف سے جشن منایا گیا. غزہ کے شہری اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے بھی دیکھے گئے.
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसराइल को गजा पर हमले रोकने की तरगीब के बावजूद गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक गजा के कई इलाकों पर वहशियाना बमबारी की गई है। बताया गया है कि गजा सिटी, खान यूनुस और दीगर इलाकों पर कई इमारतों को निशाना बनाया गया। मासूम बच्चे हमलों के बाद चीखते चिल्लाते सड़कों पर देखे गए। बताया गया है कि पनाह गजीनों के कैंपों से चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी गईं। यहूदी फौज ने गजा सिटी के रेमाल इलाके में अनूर नाबीना सेंटर को भी निशाना बनाया। इस हमले में भी कई लोगों की जाने की इत्तलात हैं। ये अंदाज़ा के मुताबिक 24 घंटों के दौरान यहूदी फौज ने 80 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। हमास की तरफ से अमेरिकी सदर की तजावीज़ को कबूल किए जाने के बाद अमेरिकी सदर की इसराइल को दी गई हिदायत के बावजूद भी यहूदी फौज के हमलों में ज़बरदस्त शिद्दत देखी गई है। ताहम आज सुबह हमलों में कमी की इत्तला है। गजा में यहूदी फौज के हमलों में शहीद हुए दर्जनों फ़लस्तीनियों की आज तदफीन का अमल अंजाम दिया गया। अफराद ख़ानदान मैयतों के पास ज़ारो ख़ितार रोते हुए और गमज़दा हालत में देखे गए। समूद फ्लोटिला के काफिले को रोके जाने और गजा पर यहूदी फौज की मुसलसल बमबारी और मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ इटाली के अवाम मुसलसल सड़कों पर हैं। 24 घंटों की हड़ताल का ऐलान हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ 20 लाख लोग इसराइली जारहियत के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर नारे लगाते हुए देखे गए। बताया गया है कि रोम में 3 लाख लोगों का इज्तिमा हुआ, मिलान में 1.5 लाख, बुलोग्ना और फ्लोरेंस में 1 लाख, नाबलिस में 80,000, जुमला 2 मिलियन लोग सड़कों, रेलवे स्टेशन पर जमा देखे गए। इटाली गजा की हिमायत में जारी एहतजाज की वजह से मफलूज होकर रह गया है। इटाली के वज़ीर आज़म मेलोनी पर इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए ज़बरदस्त दबाव देखा जा रहा है और आज भी इटाली में आम हड़ताल है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लाखों लोग आज भी सड़कों पर रहेंगे और अहले गजा के साथ इज़हार यगांगत करेंगे। इटाली इसराइल के खिलाफ यूरोप में एहतजाज का मरकज़ बन गया है। हालिया 2 हफ्तों के दौरान दूसरी बार इटाली में इस कदर बड़ा एहतजाज देखने को मिला है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिकी सदर की तजावीज़ पर हमास के रद्द-ए-अमल को खुशाइन करार दिया है। अपने एक्स अकाउंट पर गुटेरेस ने लिखा कि गजा में जंगबंदी और इमदाद की रसाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुमकिन कोशिश करेगा। यहूदी फौज की जानिब से गजा को इमदादी सामान ले जाने वाले समूद फ्लोटिला के काफिले की तमाम कश्तियों को जब्त कर लिया गया है। तहम समूद फ्लोटिला ने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में यह कहा गया है कि गजा में नस्लकुशी की लाइव स्ट्रीमिंग जारी रहेगी और दुनिया की खामोशी इस नस्लकुशी की शराकतदार है। फ्लोटिला ने अपने पैगाम में दुनिया पर जोर दिया कि अपनी आंखें खुली रखें, आवाज़ बुलंद करें और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हों। इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया गया है। जर्मनी की मारूफ फ़िज़ाई कंपनी लुफ्तांसा ने माली दबाव और मुनाफे में नुमायां कमी के बायस मुलाजिमीन की तादाद में मरहलेवार कमी का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक ये अमल 2030 तक मुकम्मल किया जाएगा और इसके तहत ज़्यादातर इंतज़ामी शोबे मुतासिर होंगे, जबकि पायलट्स और कैबिन क्रू के ओहदे महफूज रहेंगे। लुफ्तांसा एयरलाइंस ने वजाहत की है कि साल 2024 के दौरान बार बार होने वाली हड़तालों, जहाज़ों की तरसील में ताख़ीर और ईंधन और ऑपरेशनल अखराजात में इजाफे ने कंपनी की आमदनी पर गहरा असर डाला है, जिसके नतीजे में मुनाफे में 20% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। इस माली दबाव के बायस लुफ्तांसा यूरोप की दीगर बड़ी फ़िज़ाई कंपनियों के मुकाबले में मुनाफे के लिहाज से पीछे रह गई। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी एक तवील कसाद बाजारी से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा है और सनती इदारे शदीद दबाव में हैं। लुफ्तांसा ग्रुप, जो यूरोविंग्स, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, स्विस ब्रसेल्स एयरलाइंस और इटली की ITA एयरलाइंस में शराकत रखता है, ने ऐलान किया है कि वो 2028 से 2030 के दरमियान 300 मिलियन यूरो, तकरीबन 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत में कमी का हदफ हासिल करेगा। कंपनी के मुताबिक ये बचत डिजिटलाइजेशन, मसनूई जहानत के बढ़ते इस्तेमाल और इंतजामी ढांचे में सादगी के जरिए मुमकिन बनाई जाएगी। इस वक्त लुफ्तांसा के कुल मुलाजिमीन की तादाद 1,03,000 है। कंपनी का कहना है कि यह इक़दाम न सिर्फ मुस्तक़बिल की माली पायदारी के लिए ज़रूरी है, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए फ़ज़ाई खिदमात को मज़ीद मौसर और मसाबक़ती बनाने की कोशिशों का भी एक हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने अब एक हुक्म जारी किया है, जिससे अमेरिकी फौज में खिदमत अंजाम देने वाले सिखों में तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट ने हाल ही में एक फैसला किया। 30 सितंबर को मैरिन कोर बेस कॉन्नेक्टिव वर्जीनिया में एक तकरीर के दौरान उन्होंने फौज में नज़्म-ओ-ज़ब्त और को बहाल करने की बात की और इस मकसद के उसूल के लिए उन्होंने दाढ़ी पर पाबंदी की तजवीज़ पेश की है। जब अपनी तकरीर कर रहे थे, पेंटागन में एक मेमो जारी किया जिसमें तमाम फौजी शाखों को 2010 से पहले के मेयार पर वापस आने का हुक्म दिया है। इसका मतलब है कि दाढ़ी अलाउंस अब ख़त्म हो जाएगा।
इस फैसले से सिखों, ऑर्थोडॉक्स यहूदियों और मुसलमानों में बेचैनी फैल गई है। सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के एहलकारों को आर्जी छूट दी जा सकती है और फिर भी उन्हें मिशन से पहले क्लीन शेव करने की जरूरत होगी। इस फैसले से सिख, ऑर्थोडॉक्स यहूदी और मुसलमान फौजियों में हलचल मच गई है। बहुत से फौजी जिन्हें पहले दाढ़ी और पगड़ी पहनने की छूट हासिल थी, डरते हैं कि अब उन्हें अपने मजहब और अपने कैरियर में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। एक सिख फौजी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे बाल मेरी पहचान है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिख कोलिशन ने एक बयान में कहा कि हम इंतहाई नाराज और फिक्रमंद हैं और इस फैसले से फौज में खिदमत अंजाम देने वाले मजहबी सिपाहियों को पसमानदगी का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी फौज में सिखों की एक तवील तारीख है। उन्होंने पहली जंग अजीम के दौरान अमेरिकी फौज में खिदमत अंजाम दी। ने वेनेजुएला के साहिल के करीब कैरेबियन समंदर में मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस एक मुश्तबा कश्ती पर फौजी कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को हलाक कर दिया है। ये बात अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ ने जुमा के रोज एक बयान में बताई। वज़ीर दिफा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि कश्ती पर सवार 4 दहशतगर्द हमले में मारे गए। उनके मुताबिक कार्रवाई बैनुल-अक़वामी पानियों में वेनेजुएला के साहिल के करीब की गई, जबकि कश्ती अमेरिका के लिए मुनशियात की बड़ी मकदार स्मगल कर रही थी, जो हमारी कौम को देने के लिए भेजी जा रही थी। अमेरिकी महकमे दिफा की जानिब से अभी तक कार्रवाई की मजीद तफसीलात या हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त या कार्रवाई में शरीक फौजी शाख के बारे में कोई वजाहत या तफसीलात जारी नहीं की गई। दूसरी जानिब वेनेजुएला की हुकूमत ने भी फिलहाल इस वाक़े पर कोई सरकारी रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। ये कार्रवाई उन अमेरिकी ऑपरेशंस के सिलसिले की एक ताज़ा कड़ी है जो मुनशियात की बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग के नेटवर्क्स के खिलाफ कैरेबियन खित्ते में किए जा रहे हैं। ये वही खित्ता जो तवील अरसे से जनूबी अमेरिका से शुमाली अमेरिका तक कोकेन की तरसील का मरकजी रास्ता समझा जाता है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने जुमा के रोज़ सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें गज़ा की इंसानी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उन्होंने अरब व इस्लामी ममालिक की जानिब से जंगबंदी और इमदादी कार्रवाइयों के लिए किए जाने वाली कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हुए कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल एकजहती के साथ खड़ा है और आलमी सतह पर होने वाली तमाम सिफारती कोशिशों में अपना फ़आल किरदार अदा करता रहेगा। इस्हाक़ डार ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से बातचीत की के दौरान काहिरा की उन सिफारती कोशिशों को सराहा जिनका मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और गज़ा के महसूर अवाम तक इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए राहदारियाँ खोलना है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में जारी अरब व इस्लामी ममालिक की मुशावरत पर तबादला ख्याल किया, जिसका मकसद आलमी बरदरी पर दबाव बढ़ाना है ताकि एक पायदार जंगबंदी अमल में लाई जा सके और गज़ा के शहरियों को फौरी इमदाद फराहम की जा सके। इस मौके पर इस्हाक़ डार ने डॉक्टर बदर अब्दुल आती को इस्लामाबाद के दौरे की दावत दी, जिन्होंने इस दावत को कबूल किया। दोनों मालिक ने मशरक़ वस्ता में एक मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए सिफारती राब्तों और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। इसी तरह सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से गुफ्तगू के दौरान इस्हाक़ डार ने हालिया कसरुलजहती इजलासों का हवाला देते हुए अरब व इस्लामी नुमाइंदों और अमेरिका के दरमियान होने वाली मुशावरत पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि गज़ा में जंगबंदी के लिए मुत्तहदा सिफारती हिकमत अमली अपनाई जाए और इंसानी इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद वसअत दी जाए। इस्हाक़ डार ने सऊदी अरब के कायदाना किरदार को भी सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान इंसाफ और शफाफियत पर मबनी इज्तिमाई सिफारतकारी का हामी है। गुफ्तगू के दौरान दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी अमन कोशिशों पर हमास के ताज़ा रद्द-ए-अमल पर भी तबादला ख्याल किया, जिसे उन्होंने तशद्दुद में कमी के एक मुमकिना मौके के तौर पर देखा। फरीक़ैन ने इस बात पर जोर दिया कि 1967 से कबल की सरहदों पर मबनी 2 रियासती हल ही मशरक़ वस्ता में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है और मशरक़ी यरूशलेम अल कुद्स को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत तस्लीम किया जाना चाहिए। इस्हाक़ डार ने दोनों मालिक के वज़ीर ख़ारजा को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और एक जामे और मुनसिफ़ाना हल के लिए आलमी व इस्लामी सिफारती कोशिशों के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग है और इस मकसद के हसूल के लिए अपनी हिमायत और ताउन जारी रखेगा। जर्मनी के शहर म्यूनिख के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन की मौजूदगी के खदशे के बायस दूसरी मरतबा फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल किए जाने के बाद हफ्ते के रोज़ परवाज़ें बतदरीज बहाल कर दी गईं। एयरपोर्ट इंतज़ामिया के मुताबिक इस वाक़े के नतीजे में 6500 से ज़ायद मुसाफिर मुतासिर हुए, जबकि मुतादिद परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हुईं। म्यूनिख एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने बताया कि जुमा की शब तकरीबन 9:30 बजे फ़ज़ाई आमदरफ़्त पहले महदूद और बाद अज़ां ड्रोन देखे जाने के बायस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई। इस दौरान 23 परवाज़ों को दीगर शहरों की तरफ मोड़
दिया गया, जबकि 12 परवाजें मनसूख हुई। मजीद 46 रवानगियां हफ्ते की सुबह तक मुलतवी या मनसूख की गईं। पुलिस के मुताबिक जुमा की रात 11 बजे के करीब शुमाल और जनूबी रनवेज के करीब 2 ड्रोन्स की तस्दीक शुदा झलकियां पुलिस अहलकारों ने देखी थी। तर्जुमान के मुताबिक ड्रोन्स फौरी तौर पर इलाके से दूर चले गए, इससे पहले कि उनकी शनाख्त हो सके। जुमेरात को होने वाले पहले ड्रोन वाक़े के बायस 30 से ज़ायद परवाजें मनसूख हुई थीं और तकरीबन 3000 मुसाफिरीन एयरपोर्ट पर फंस गए थे। जर्मन वज़ीर दाखिला अलेक्जेंडर बर्नट ने वाक़े को ड्रोन खतरात के बारे में एक इंतबाह करार देते हुए कहा कि ड्रोन हमलों और उनके दिफा के दरमियान दौड़ तेज़ी से पेचीदा हो रही है, लिहाजा इस मसले पर कौमी और यूरोपीय सतह पर मज़ीद तहक़ीक़ और माली मुआविनत की ज़रूरत है। ये वाक़यात ऐसे वक्त में पेश आए जब जर्मनी यौम इत्तेहाद बना रहा था और म्यूनिख में अक्टूबर फेस्ट के इख्तितामी हफ्ते के लिए हज़ारों सयाह मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि इसी हफ्ते मेले की इतला है और इसके बाद चंद घंटों के लिए इसे मुअत्तल भी किया गया था। दूसरी जानिब डेनमार्क, नॉर्वे और पोलैंड में भी हालिया दिनों में नामालूम ड्रोन्स के सबब परवाजें मुअत्तल की गई हैं, जबकि रोमानिया और एस्टोनिया ने इन वाक़यात का जिम्मेदार रूस को ठहराया है। ताहम मॉस्को ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए यूरोपीय ममालिक पर अस्करी खौफ फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया है। ईरान के सफ़ीर अली रज़ा दिलकोश ने ऐलान किया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने श्रीलंका और मालदीव की हुकूमतों को ख़तूत भेजे हैं, जिनमें उन्हें मगरबी पाबंदियों के खिलाफ मज़ाहमत करने और इन इक़दामात के खिलाफ वाज़ेह अवामी मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत की गई है। सफ़ीर दिलकोश के मुताबिक इराक़ची ने ख़तूत में ख़बरदार किया है कि अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों की पाबंदियों पर अमल करना बैनुल-अक़वामी क़ानून की साख को कमज़ोर कर सकता है और दीगर ममालिक के लिए ख़तरनाक मिसाल कायम कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाबंदियों की पैरवी आलमी कानूनी फ्रेमवर्क के लिए एक चैलेंज है और ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं बल्कि मुस्तक़बिल में जनूबी एशिया और अफ्रीका जैसे खत्तों पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। ये खतूत इस वक्त जारी किए गए जब 28 सितंबर को स्नैपबैक मैकेनिज्म के फ़ाल होने के बाद ईरान के खिलाफ दोबारा पाबंदियां और करारदादें नाफिज की गई हैं। ये पाबंदियां पहले 2015 के एटमी माहदे के तहत ख़त्म की गई थी। इससे कबल अगस्त के आखिर में फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ईरान के खिलाफ इस मैकेनिज्म के फ़ाल होने की दरख्वास्त की थी, जिसे तेहरान ने कानूनी बुनियाद से खाली करार दिया है। इराक़ची ने खतूत में कहा कि अगर ममालिक इन पाबंदियों के खिलाफ मज़ाहमत न करें तो बैनुल-अक़वामी कानून की साख कमज़ोर होगी और ताकतवर ममालिक बगैर किसी जवाबदेही के पाबंदियां आयद कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी कानून को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना खतरनाक है और इसके आलमी सतह पर देरपा असरात मुरत्तब हो सकते हैं। सफ़ीर दिलकोश ने मज़ीद कहा कि छोटे ममालिक बैनुल-अक़वामी गैर जानिबदारी के दिफा में अहम किरदार अदा कर सकते हैं और ताकतवर ममालिक को बेरोक टोक अमल करने से रोक सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरान की हिमायत सिर्फ एक मुल्क की मदद नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी निज़ाम की साख और एतबार की हिफाजत भी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में नौजवानों से मुतल्लिक़ 62,000 करोड़ रुपए के इक़दामात की रौनमाई अंजाम दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिहार के मुख्यमंत्री साहित्य भट्टा योजना का भी आगाज़ किया है। इस स्कीम के तहत माहाना 1,000 तक 5 लाख रुपए का अलाउंस दिया जाएगा। यह अलाउंस 2 साल तक के लिए रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सनत पर मबनी कोर्सेज और पेशा वाराना तालीम को फ़रोग़ देने के लिए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इस प्रोग्राम से बिहार के हज़ारों नौजवान जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि 2 दहाइयों पहले बिहार में तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका था। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे और न ही भर्तियाँ होती थीं। कौन माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा तालीम में आगे बढ़े, लेकिन बिहार के लाखों बच्चों को बनारस, मुंबई, दिल्ली जाना पड़ा। यही बिहार के नौजवानों की बलाइम की शुरुआत थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिन दरख्त की जड़ों में कीड़ा लग जाता है, इसको फिर से जिंदा करना बहुत मुश्किल है। आरजेडी की गलत हुकूमत ने बिहार की हालत इसी दरख्त की तरह कर दी थी, लेकिन किस्मत से बिहार की अवाम ने नीतीश कुमार को रियासत की जिम्मेदारी सौंपी है। एनडीए की टीम ने बिगड़ी हुई सूरत हाल को सही पटरी पर लाया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में हिंदुस्तान ने इनिंग्स और 140 रनों से जीत हासिल कर ली। वेस्टइंडीज ने पहली बारी में 162 रन बनाए थे और उसकी दूसरी बारी सिर्फ 146 रन पर ढेर हो गई। पहली इनिंग्स में मोहम्मद सिराज ने 4, बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया था। पहले इनिंग्स में हिंदुस्तान के बैट्समैन ने शानदार इनिंग्स खेली। केएल राहुल ने 100, ध्रुव जोरेल ने 125 और रविंद्र जडेजा ने 104 रन नॉट आउट बनाए। वेस्टइंडीज की दूसरी बारी शुरू से ही लड़खड़ाती रही। पूरी टीम 45.1 ओवर्स में महज 146 रनों पर ऑल आउट हो गई। मोहम्मद सिराज ने 3, जडेजा ने 4, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। दूसरे टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 से बरतरी हिंदुस्तान ने हासिल कर ली है। मैन ऑफ द मैच का एजाज रविंद्र जडेजा को दिया गया।
दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। तहम एक रोजा मैचेस के लिए रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को तरजीह दी गई है और उन्हें कप्तान मुकर्रर किया गया है। 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज के लिए टीम इस तरह रहेगी: शुभमन गिल कप्तान, श्रेयस अय्यर नायब कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल। 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, शुभमन गिल नायब कप्तान होंगे। T20 के दीगर खिलाड़ियों में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हमास ने तजावीज़ कबूल की हैं। तारीखी दिन, इसराइल गजा पर बमबारी रोक दे, अमेरिकी सदर ट्रंप का जोर। अमेरिकी सदर ट्रंप की ताकीद के बावजूद भी गजा पर यहूदी फौज के वहशियाना हमले, दर्जनों हलाकतें। गजा के मजलूम शहरियों की हिमायत में इटाली के कई शहरों में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे, इंसानी सरों का समंदर, मुल्क का निजाम मफलूज। मुनाफे में कमी के बाद हजारों मुलाजिमतों में कटौती का ऐलान, एयरलाइंस लुफ्तांसा का बड़ा फैसला। जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर ड्रोन का दूसरा खतरा, परवाजें बहाल मगर ताखीर मुतवक्के। और मनशियात स्मगलिंग की मुश्तबा कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक, अमेरिका की कैरेबियन में कार्रवाई। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।